ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਤੇ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ, ਥੋੜਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਡਰ, ਬਿਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੋਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਨਵਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ। ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਰਾਮ ਭਗਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੂਪੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੂਪੀਨ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਮਰ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਹਿੰਦੂ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਗੁਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਜੀਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਣ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਵ, ਰਜਸ, ਤਮਸ। ਮਤਲਬ ਚੰਗਿਆਈ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾਪਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਰਾਵਣ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2009 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਬਲਾਇਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਲਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅੰਗਪੋਰਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਰਿਸ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਹਾਲੀ ਪੂਰਵਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਦੇਵਤਾ ਬੰਡਾਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੰਡੂ ਮੁਨਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਸੀ। ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਕਨੋਲੋਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਗੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਰਾਵਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਹਾਲੀ ਬੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਵਣ 1 ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੰਹਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਮਿਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਉਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਨਾ। तो आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी रामायण उस पर बात कर रहे हैं जी। और ख़ास तौर पर इसके जो मरकज़ी किरदार हैं राम और रावण, उनकी जो मुख्तलिफ तशरीहात हैं वक्त के साथ। बिल्कुल, और हमारे पास ज़राए भी काफ़ी मुतनव्वे हैं। मतलब वाल्मीकि की रामायण से लेकर बुद्धमत की जातक कहानियाँ, तारीखी चीज़ें और
आजकल की बहसें भी। हाँ, और वो श्रीलंका वाला पहलू तो खास तौर पर दिलचस्प लगता है। जी, वो रावणाइजेशन वाला मामला, उस पर भी बात करेंगे। मकसद यही है कि समझें कि ये कहानी और किरदार कैसे बदले हैं मुख्तलिफ जगहों और वक्तों में। ठीक है, तो राम से शुरू करते हैं। उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी, यानी अखलाक और उसूलों का आला तरीन नमूना। और राम राज्य का तस्वुर, एक मिसाली हुकूमत, इंसाफ वाली, ये तो बहुत ऊंचा मेयार है। हाँ, रिवायती तौर पर तो यही तस्वीर है, एक मिसाली बेटा, शौहर, भाई, बादशाह, मतलब पूरी जिंदगी धर्म निभाने की कहानी। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? कुछ पेचीदगियां भी तो होंगी ना? यकीनन, ज़राए में भी इसका जिक्र है, जैसे वो बाली का कत्ल, छुपकर, उस पर आज भी लोग, आप देखें, ऑनलाइन फोरम्स वगैरह पर सवाल उठाते हैं। सही कहा, हजारों साल बाद भी ये बहसें चल रही हैं। यही तो इन कहानियों की ताकत है। बिल्कुल। और जाहिर है वो 14 साल का बनवास, फिर अयोध्या वापसी, दिवाली का ताल्लुक भी इसी से है। ये तो खैर कहानी का बहुत अहम जज्बाती हिस्सा है। जी हाँ। अच्छा, राम की ये जो पेचीदगी है, ये हमें दूसरे अहम किरदार यानी रावण की तरफ ले जाती है। उनकी शख्सियत तो शायद और भी तहदार है। ये बहुत अहम नुक्ता है। रवायती तौर पर तो वो विलन है, खलनायक, लेकिन वो सिर्फ उतना नहीं है। वो एक जबरदस्त आलिम थे, वेदों के माहिर, म्यूजिक जानते थे। वो रावण हत्ता साज का जिक्र आता है और शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। लेकिन फिर वो अनापरस्ती, तकब्बुर, सीता का अगवा। जी, वही उनकी कमजोरी या मनफी पहलू था। तकब्बुर ने उन्हें ले डूबा, कहानी के मुताबिक। लेकिन अब आते हैं श्रीलंका पर। वहां तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग है, सुना है। जी, ये पिछली कुछ दहाइयों में खास तौर पर सनहाली बुद्धिस्ट कौम परस्ती के साथ ये रावणाइजेशन का रुझान बहुत बड़ा है। रावणाइजेशन? जी, मतलब रावण को एक कदीम ताकतवर बादशाह और अपने अजदाद के तौर पर देखना, हिला या यक्षा कबीला का। अच्छा, तो वहाँ वो विलन नहीं है? बहुत से लोगों के लिए नहीं। वहाँ 10 सिर रावण का तस्वुर है, यानी 10 सिरों का मतलब 10 उलूम या महारतें हैं। 10 महारतें? कैसी महारत है? कहा जाता है कि तिब, मार्शल आर्ट्स जैसे अंगम पूरा, और यहाँ तक कि हवाई जहाज जिसे वो डंडू मुनाराया कहते हैं, उसका इल्म भी था उन्हें। है? हवाई जहाज? ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। जी, ये रिवायती तस्वीर से बिल्कुल हटकर है। ये एक तरह से कौमी शनाख्त को दोबारा कायम करने की कोशिश है। और ये सिर्फ कहानियां नहीं, मतलब जगहों से भी जोड़ते हैं इसे? बिल्कुल। सिगेरिया का जिक्र आता है। कुछ लोग इसे रावण का महल कहते हैं या उसके भाई कुबेरा का। फिर लकीगाला पहाड़ है। लकीगाला? जी, उसे जंग का मैदान या रिहाइश गाह या शायद कोई फल्कियाती मुशाहिदा गाह भी कहा जाता है। वाह। और ये सिर्फ कदीम मकामात नहीं, आज भी जैसे सिरी देवरा महावहाराया एक जगह है, वहाँ बाकायदा रावण की पूजा होती है। सालाना जुलूस भी निकलता है, महारावण पैराहारा। पूजा और जुलूस रावण के लिए? जी, तो ये एक जिंदा रवायत बन रही है। कुछ मौर्रिख इसे चोला दौर के असरात से भी जोड़ते हैं, जब शिव मत को फरोग मिला था। ये तो हैरान कुन है। अच्छा, रामायण का असर सिर्फ यहीं तक तो नहीं रहा, ये तो फैली है ना दूर दूर तक? यकीनन, पूरा जनूब मशरिकी एशिया भरा पड़ा है। इंडोनेशिया में वायंग कुलियत, वो जो साया कठपुतली का खेल है। हाँ, देखा है। और थाईलैंड में कोन रक्स, उन सब में रामायण की कहानियां हैं। और बुद्ध मत में भी इसकी अपनी तशरीहात है। जी, जातक कहानियों में वहाँ राम को अक्सर बुद्ध का पिछला जन्म यानी बोधिसत्वा दिखाया जाता है। अच्छा। और दिलचस्प बात ये कि इन वर्जन्स में तशद्दुद को कम कर दिया गया है, जैसे ताड़का का कत्ल वगैरह, बुद्ध मत के अदम तशद्दुद के उसूल के मुताबिक। ये तो मुआफकत की बेहतरीन मिसाल है। और हनुमान, उनका क्या किरदार है इस फैलाव में? हनुमान तो मेरा ख्याल है आलमी सतह पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले किरदारों में से हैं। जी। उनकी वफादारी, ताकत, भक्ति, हिंदुस्तान से थाईलैंड, मलेशिया, हर जगह उनके मंदिर मिलते हैं, बहुत मकबूल हैं। तो ये सारी बातचीत, ये मुख्तलिफ तशरीहात, आज के दौर में इनकी क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, रामायण आज भी धर्म पर सोचने की दावत देती है। फर्ज क्या है, अखलाकियात क्या हैं, मिसाली किरदार कैसे हों, बेटा, शौहर, हुक्मरान। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रही। आप अयोध्या में राम मंदिर की तामीर देखें, उस पर जो बहसें हुई, ये जाहिर करता है कि ये कहानियां आज भी जिंदा हैं, लोगों की शनाख्त, उनके अकीदे का हिस्सा हैं। तो खुलासा ये हुआ कि रामायण कोई एक फिक्स्ड कहानी नहीं है, ये एक जिंदा रिवायत है जो बदलती रहती है। बिल्कुल। सकाफतें जैसे श्रीलंका उन्हें बिल्कुल नए माने दे रही हैं। जी हाँ, ये कहानियां हमें इंसानी फितरत, अच्छाई, बुराई, फर्ज, इन सब पर गौर करने पर मजबूर करती रहती हैं। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जिस तरह हम आज इन कदीम कहानियों को नए माने दे रहे हैं, ये अमल मुस्तकबिल में हमारी सकाफती और कौमी शनाख्तों को कैसे और किस तरह बदल सकता है। जय सिया राम। क्या आप जानते हैं कि जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो स्वयं नारायण का अवतार थे? एक ऐसा अवतार जिसका उद्देश्य केवल एक राक्षस का वध नहीं, बल्कि मानवता को हजारों वर्षों तक धर्म का मार्ग दिखाना था। कभी सोचा है कि जिस ईश्वर के एक संकल्प मात्र से ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे क्यों एक साधारण मनुष्य बनकर धरती के कष्ट सहने पड़े? क्यों उस राजकुमार ने, जिसके चरणों में समस्त सुख वैभव लौटते थे, स्वयं कांटों भरा मार्ग चुना और 14 वर्षों तक वन वन भटका?
आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की उस अद्भुत लीला की कहानी जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। दिव्य जन्म और आदर्श चरित्र। त्रेता युग में जब लंकापति रावण के अत्याचारों से त्रिलोक कांप उठा था और उसके अहंकार की अग्नि में धर्म और मर्यादा भस्म हो रहे थे, तब इस अधर्म के अंधकार को मिटाने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु कुल में राजा दशरथ और महारानी कौसल्या के पुत्र के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। वाल्मीकि रामायण उन्हें एक आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाती है जो हर परिस्थिति में धर्म और वचन का पालन करते हैं। वहीं तुलसीदास का रामचरितमानस उन्हें साक्षात परब्रह्म के रूप में पूजता है, जिनकी हर क्रिया एक लीला है। त्याग, संघर्ष और धर्म की स्थापना। जब माता कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया तो उन्होंने बिना किसी प्रश्न के उसे स्वीकार कर लिया। ये केवल पितृवचन का मान न था बल्कि राजधर्म की एक गहन मर्यादा का पालन भी था। उस विधान के अनुसार यदि कोई राजकुमार 14 वर्षों तक अपने सिंहासन और प्रजा से दूर रहे तो वो शासन पर अपना स्वाभाविक अधिकार खो देता था। श्री राम ने ये जानते हुए भी वन जाना स्वीकार किया। ये त्याग धर्म की स्थापना का पहला चरण था। वन में उन्होंने साधारण मानवों की तरह कष्ट सहे, ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया और भारत के वनवासी समुदायों को एक धर्म के सूत्र में पिरोया। किंतु इस धर्म यात्रा की सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष थी। जब अधर्म के प्रतीक रावण ने माता सीता का हरण कर अपनी दुष्टता की पराकाष्ठा दिखाई, तब भी श्री राम ने अपनी दैवी शक्तियों का क्षण में प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह संघर्ष का मार्ग चुना और वानरों, भालुओं की संगठित सेना बनाकर असत्य पर सत्य की विजय का उदाहरण प्रस्तुत किया। समुद्र पर सेतु का निर्माण उनकी इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि उनके अटूट विश्वास और संकल्प शक्ति का प्रतीक था। रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का शंखनाद था। और फिर स्थापना हुई राम राज्य की, जो आज भी न्याय, समता और समृद्धि का सबसे बड़ा आदर्श है। श्री राम का संदेश। श्री राम का जीवन एक शाश्वत संदेश है। शक्ति का सच्चा अर्थ अधिकार जताना नहीं, कर्तव्य निभाना है। महानता असीमित होने में नहीं बल्कि अपनी सीमाओं में रहकर भी पुरुषोत्तम बनने में है, अर्थात मर्यादा में जीने में है। तो अगली बार जब आप राम नाम जपे तो याद रखिएगा कि आप केवल एक देवता को नहीं बल्कि उस आदर्श को याद कर रहे हैं जो हमें मनुष्य बनना सिखाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। Thank you.